Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine at your homes. Okay, today we are going to start a new chapter, and that is the White Mouse Circus. Really interesting story. Hope you like it. So before I would get started, make sure to keep a pencil in your hand so that you may underline all the difficult words, and you're going to write all the word meanings in your notebook. So let's get started. First of all, let's look the words. Dressing, refreshing. Chambermaid, a maid who cleans a hotel room. Chambermaid is a maid, यानी कि एक ऐसी maid जो कि she used to clean the hotel room. Compromise, a settlement of a dispute in which two sides agree to accept less than they originally wanted. Compromise का मतलब ये होता है यानी कि समझौता, यानी कि कोई भी दो parties के बीच में if they don't want to get it to settle, तो उसमें कोई एक mutually एक understanding हो जाती है कि हम इसका नहीं, जो originally वो लोग चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो सकती, but कोई भी ऐसी mutually understanding से कोई एक third जो है वो compromise हो जाता है, किसी third point पे acceptance हो जाती है. Consolation, a source of comfort to somebody who is upset or disappointed. यानी कि कोई भी ऐसी source यानी कि comfort देना किसी बंदे को जो कि already upset हो या disappointed हो या sad हो, that's called consolation. Relentlessly, never slackening but going at the same pace, यानी कि बहुत ही सख्त leader, strictness same pace पे, यानी कि बिल्कुल गुस्सा ठंडा नहीं होना, बिल्कुल भी low pace पे नहीं जाना, एक ही go में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा and all that. Scuttling, running and moving quickly with short steps, यानी कि running and moving quickly यानी कि running भागना या छोटे-छोटे steps लेके आगे जाना. Sidle, to edge along in a secretive way, यानी कि आगे बढ़ना, देखना बहुत ही secret way में, बहुत ही चुपके से. Tomerot, utter foolishness, nonsense, यानी कि बिल्कुल बेवकूफ़ी, nonsense, पागलपन. Wit, to arouse one's appetite, यानी कि किसी की भूख को बढ़ाना. Okay, so basically ये भी एक extract है, and this is from the story called The Witches. इसमें एक extract, इसमें एक chapter that's called The White Mouse Circus. This extract is from Roald's book, The Witches. So the writer of the story is Roald Dahl, और उसकी story थी एक Witches, जिसमें से ये chapter लिया गया है. The story is about a young boy and his encounter with witches. यानी कि एक यंग बॉय की स्टोरी है जिसके अचानक से एक एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाती है विच से, तो इसके बारे में ये स्टोरी है. द बॉय हु लिव्स विद हिज ग्रैंड मदर इज ड्यू टू स्पेंड हिज हॉलीडेज इन नॉर्वे. अच्छा, एक बच्चा है, एक बॉय है, एंड वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है और वो अपनी हॉलीडे गुजारने के लिए नॉर्वे जाता है. बट बिकॉज हिज ग्रैंड मदर फॉल्स इल, दे कैन नॉट गो. इंस्टेड ही इज टेकन टू अ सी साइड होटल इन इंग्लैंड. इफ यू हैव नॉट रीड द बुक ऑलरेडी, बी श्योर टू रीड इट सून. अच्छा, ही वांट टू स्पेंड द हॉलीडेज इन नॉर्वे, बट हुआ क्या कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार हो जाती है. इल कहते हैं बीमार होने को, तो वो इसके बजाय कि वो नॉर्वे जाए तो वो कहाँ उनको डॉक्टर भेज जाते हैं, एक सी साइड होटल यानी कि समंदर के किनारे एक होटल है इंग्लैंड में, वो उसको वहाँ भेज देते हैं ताकि वो फ्रेश वगैरह हो जाए. तो दे सेइंग कि अगर आपने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो मेक श्योर कि आप ये स्टोरी पढ़ लें, बिकॉज ये एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है. नाउ, rooms were booked for us in a place called Hotel Magnificent in the famous seaside town of Bournemouth. अच्छा, rooms हम लोगों के लिए बुक हो चुके थे कहाँ पे? होटल मैग्निफिसेंट पे. मैग्निफिसेंट होटल वाज द नेम ऑफ द होटल, और वो फेमस था, काफ़ी मशहूर था सी साइड पे, बॉर्नमाउथ पे, जिस वहाँ पे एरिया था. बॉर्नमाउथ, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, वाज फुल ऑफ ओल्ड पीपल लाइक हरसेल्फ. अच्छा, बॉर्नमाउथ का जो प्लेस था वो भरा हुआ था इसी तरीके के ओल्ड एज लोगों से. They retired there by the thousands because the air was so bracing and healthy, it kept them, so they believed, alive for a few extra years. अच्छा, इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये बेसिकली जो ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो यहाँ पे अगर वक्त गुजारें तो उनके कुछ लाइफ के एक्स्ट्रा ईयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ईयर्स बढ़ जाते हैं, मतलब वो हेल्दी हो जाते हैं, रिफ्रेशिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको वहाँ रह के, तो उनके लाइफ के जो ईयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं. Does it? I asked. अच्छा, बेसिकली जो बंदा है यहाँ पे जो बॉय है, ही इज़ नरेटिंग द स्टोरी, ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, सो वो ये स्टोरी बयान कर रहा है. ऑफ कोर्स नॉट, शी सेड, इट्स अ टॉमेरॉट, बट जस्ट फॉर वंस आई थिंक वी हैव गॉट टू बी द डॉक्टर. सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर कि वाकई ऐसा होता है? तो उनकी ग्रैंड मदर ने क्या कहा, नो, ये सब बेवकूफ़ी बनाने वाली बात नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दफ़ा वहाँ जाना चाहिए टू बी द डॉक्टर की बात मानने के लिए. Soon after that, my grandmother and I took the train to Bournemouth and settled into the Hotel Magnificent.
अच्छा फिर क्या हुआ कि मैं जो है ट्रेन मैंने ली बोर्नमाउथ के लिए और हम लोग फ़ौरन अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो है वहाँ पे बैठ के होटल मैग्निफिसेंट पे आ गए, सेटल हो गए. इट वॉज एन इनॉर्मस white building on the seafront and it looked like a pretty boring place. अच्छा ये जो enormous का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था वो होटल, और pretty boring यानी कि देखते रहता था काफ़ी boring place है. To spend a summer holiday in यानी कि एक holiday गुजारने के हिसाब से उसको जगह बहुत boring लगी. I had my own separate bedroom but there was a door connecting my room with my grandmother's room. अच्छा मेरा जो रूम था वो separate था लेकिन मेरे साथ grandmother का रूम था वो भी connected था. You see, this is a boy and his grandmother. Just before we left for Bournemouth, my grandmother had given me, as a consolation, a present of 2 white mice in a little cage, and I took them with me. Oh, so sweet of her. Matlab, definitely he wasn't happy to go with her to the hotel because he wanted to go to Norway. लेकिन क्या हुआ कि उसको please करने के लिए, उसको खुश करने के लिए grandmother ने क्या किया? As a consolation, उसने 2 mice कहते हैं, it's the feminine of mouse, जिसको हम उर्दू में चूया कहते हैं, और वो उसको एक केज में 2 mice एज अ गिफ्ट दी ताकि उसका दिल बहल सके. एंड आई टुक देम विद मी. दे वर टेरिफिक फन. मतलब बहुत ही मज़ा था उसमें, मतलब उसको जब वो गिफ्ट मिला तो बहुत उसने एंजॉय किया. आई कॉल देम विलियम एंड मैरी एंड द होटल आई सेट आउट राइट अवे टीचिंग देम टू डू ट्रिक्स. चलो जी, इन्होंने क्या किया, ये वहाँ होटल में ले गए, इन दोनों को नाम दे दिया विलियम एंड मैरी का, और वो उसको कुछ ट्रिक्स जो है वो उसको सिखाने लगा. द फर्स्ट ट्रिक आई टॉट देम वाज टू क्रीप अप. तो जो पहली ट्रिक उसने सिखाया कि अपनी जैकेट से वो उसको रेंगते हुए जाता था और वो अपनी गर्दन से बाहर आता था. यानी कि उसने क्या उसको सिखाया कि वो पहले जाता था अपनी स्लीव्स के जरिए क्रीप करता था, रेंगता था, और कहाँ जाता था, अपनी गर्दन से बाहर आ जाता जो माइस थी. देन आई टॉट देम टू क्लाइंब अप द बैक ऑन माई नेक ऑन टू द टॉप ऑफ माई हेड. यानी कि फिर उसने सिखाया कि बैक से गर्दन के अंदर से घुसता था और हेड के बाहर आता था. माई गॉड. I did this by putting crumbs in my hair. यानी कि उसको खाने पीने की चीज़ या भोरे वगैरह जिससे वो लोग अट्रैक्ट करते थे वो अपने बालों में डालता था ताकि वो उसके पीछे पीछे, यानी कि खाना खाने के चक्कर में जो है वो उसके पीछे पीछे आए. On the very first morning, the chambermaid was making my bed when one of my mice poked its head out from under the sheets. अच्छा, the next morning क्या what happened कि जब chambermaid कहते हैं जो होटल की रूम सफाई जो करती है, the maid की मेन, उसने जो है वो सब द बेड शीट्स वगैरह चेंज करने में के लिए जब वो आई तो what she saw कि वहाँ पे माइस जो उसने अपना सर निकाल के शीट्स के नीचे से वो उसको देखने लगी. The maid let out a shriek and that brought a dozen people running to see who was being murdered. जैसे ही उसने वो एक बड़ी ही उसने यल किया, उसने चीखा, तो उसने क्या एक बार तकरीबन डजन लोग यानी कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए, एज इफ किसी का मर्डर हो गया. आई वॉज रिपोर्टेड टू द मैनेजर. देयर फॉलोड एन अनप्लेजेंट सीन द मैनेजर्स ऑफिस विद द मैनेजर, माई ग्रैंड मदर एंड मी. ओके, मेरी रिपोर्ट हो गई, मेरी कंप्लेन हो गई मैनेजर में, और फिर क्या हुआ नेक्स्ट सीन में कि मेरी ग्रैंड मदर, मैं और मैनेजर के सामने हम लोग खड़े हुए थे. द मैनेजर हुज नेम वाज मिस्टर स्ट्रेंजर वाज अ ब्रिस्ली मैन इन अ ब्लैक टेल कोट. अच्छा, मिस्टर स्ट्रिंगर जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और ब्लैक टेल कोट एक कोट ऐसा होता है जो आपने अक्सर देखा होगा कि पीछे से उसकी वो टेल होती है, मतलब फ्रंट से जो होता है उसका काफ़ी शॉर्ट होता है उसका, और पीछे से काफ़ी उसका लॉन्ग कोट होता है, टेल निकली होती है टाइप की. आई कैन नॉट परमिट माइस इन माई होटल मैडम, ही सेड टू माई ग्रैंड मदर. मैं अपने होटल में इन माइस को अलाउ नहीं कर सकता. परमिट टू अलाउ. हाउ डेयर यू से दैट व्हेन योर रॉटन होटल्स फुल ऑफ रेट्स एनीवे, माई ग्रैंड मदर क्राइड. मेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे कहा तुम्हारे सड़े हुए होटल में तो पहले से इतने चूहे मौजूद हैं. Rats? cried Mr. Stranger, going mauve in the face. There are no rats in this hotel. Mauve का मतलब होता है यानी कि फेस का कलर एकदम से चेंज हो जाना. मे बी he got angry definitely. उसको किसी ने कहा हो कि आपके होटल में rats, definitely वो गुस्से में आ गए होंगे. I saw one this very morning, my grandmother said. It was running down the corridor into the kitchen. ग्रैंडमदर ने क्या कहा, मैंने बिल्कुल सुबह ही देखा है कि वो रैट था और वो जो है वो कॉरिडोर की तरफ से जो है यानी कि रूम के बाहर का जो स्पेस होता है दैट्स कॉल्ड कॉरिडोर, और किचन में जा रहा था. दैट्स नॉट ट्रू, क्राइड मिस्टर स्ट्रेंजर. यू हैड बेटर गेट दिस रैट कैचर एट वंस, माय ग्रैंडमदर सेड, बिफोर आई रिपोर्ट यू टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज. आई एक्सपेक्ट देयर आर रैट्स स्कटलिंग ऑल ओवर द किचन फ्लोर एंड stealing the food off the shelves and jumping in and out of the soup. My God. उसने क्या कहा कि तुम अगर फ़ौरन जो है वो जो रैट कैच करने वाला जो एक अपरेटस होता है, अगर तुमने वो नहीं लिया, तुमने अगर इसका किचन में प्लेस नहीं किया, तो मैंने फ़ौरन ही कंप्लेन कर देनी है पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ में कि आपके जो रैट्स हैं वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं किचन में,
एंड सारे फूड्स को वो खाते हैं और सूप में भी जंप करते हैं. Never, cried Mr. Stranger. No wonder my breakfast toast was all nibbled round the edges this morning. My grandmother went on relentlessly. अच्छा कह रहे उसमें कोई शक नहीं कि मेरे ब्रेकफास्ट का जो टोस्ट था वो भी इसके सारे एजेस से सारे निबल राउंड, यानी कि चूहों ने कतरा हुआ था, खाया हुआ था. और मेरी ग्रैंडमदर बोलती चली गई, आई मीन विदाउट एनी स्पेस, यानी कि बिल्कुल ही गुस्से से वो बोलती चली गई एक ही अपने मूड में. No wonder it had a nasty, ready taste. If you're not careful, the health people will be ordering the entire hotel to be closed before everyone gets typhoid fever. देखा इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये तुम्हारा गंदा खाना था बहुत ज़्यादा और अगर तुमने इसके बारे में तुमने केयर नहीं करी, ख्याल नहीं किया, तो व्हाट विल द हेल्थ पीपल वुड डू कि वो ऑर्डर कर देंगे, सारा होटल को बंद कर देंगे इससे पहले कि हर किसी का टाइफाइड फीवर हो जाए. You're not being serious, madam, Mr. Stranger said. आप सीरियस नहीं हो सकती मैडम. I was never more serious in my life, my grandmother said. Are you or are you not going to allow my grandson to keep this white mice in this room? मैं कहा मैं से ज़्यादा कभी सीरियस हो ही नहीं सकती थी. आप अलाउ कर रहे हैं मेरे बच्चे को कि वो माउस जो है वो इस रूम में रख सके या नहीं रख सके. The manager knew when he was beaten. मैनेजर को पता था जब उसको पीटा गया था. May I suggest a compromise, madam? He said. क्या मैं एक कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट कर सकता हूँ मैडम, ये नहीं कहना क्या हम इसके बारे में कोई ऐसी प्रॉपर चीज़ हम कर सकते हैं. कॉम्प्रोमाइज़ को हम समझौता कर सकते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी read the meanings. I will permit him to keep them in this room as long as they are never allowed out of the cage. How's that? मैं उस सूरत में परमिट कर सकता हूँ कि जब वो केज में ही रहे, वो केज से बाहर ना आए. That will suit us very well, my grandmother said, and she stood up and marched out of the room with me behind her. ये हमें सूट कर सकता है. उसके बाद क्या हुआ, वो मार्च करते हुए यानी कि बाहर गए और उसके पीछे पीछे उनका जो ग्रैंडसन था वो गया. There is no way you can train mice inside a cage. Yet I dared not let them out because the chambermaid was spying on me all the time. अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उसको केज के अंदर रखते हुए जो हूँ मैं उस माइस को ट्रेन कर सकूँ. और जो चेम्बरमेड थी एंड उसको क्या कहा गया था कि वो ऑलवेज स्पाई का मतलब होता है कि किसी पे नज़र रखना. वो ऑल द टाइम देखती थी कि मैं कोई माइस जो है वो केज से बाहर तो नहीं आ रही. शी हैड अ की टू माई डोर एंड शी केप्ट बर्स्टिंग इट at all hours trying to catch me with the mice out of the cage. अच्छा उसके पास एक डोर की एक्स्ट्रा की थी और वो कभी भी की दरवाजे के अंदर आ जाती थी देखने के लिए कई माइस जो है मैंने केज से बाहर तो ही निकाल दिया. I decided to seek a safer place where I could carry on with the training. मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए कोई ऐसी जगह फाइंड आउट करूँगा जहाँ मैं ईजिली इसकी ट्रेनिंग कर सकूँ माइस की. There must surely be an empty room in this enormous hotel. I put one mouse into each trouser pocket and wandered downstairs in search of a secret spot. मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि वहाँ इतना बड़ा इनॉर्मस होटल, इतना जाइंट होटल है, इतना बड़ा है, कोई ना कोई रूम तो खाली वहाँ पे होगा जहाँ मैं जो है मैं उसकी ट्रेन कर सकूँ दोनों माइस को. सो व्हाट ही डिड, उसने अपने एक ट्राउजर पॉकेट पे एक माइस रखा एंड डाउनस्टेयर्स चला गया नीचे सर्च ऑफ अ सीक्रेट स्पॉट. The ground floor on the hotel was a maze of public rooms, all of them named in gold letters on the doors. I wandered through the lounge, the card room, the reading room, and the drawing room. None of them was empty. अच्छा फिर क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर में गया तो was a maze. Maze कहते हैं just like एक लेबरिंथ यानी कि एक पजल टाइप होता है मेज कि जहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक रूम्स थे, मतलब काफ़ी मिक्सअप रूम्स थे और वहाँ पे सब गोल्ड कलर के सब पे नेम्स लिखे हुए थे गोल्ड कलर से लेटर्स से. लाउंज थे, कार्ड रूम थे, रीडिंग रूम था, लेकिन कोई भी वहाँ पे एम्प्टी नहीं था. आई वेंट डाउन अ लॉन्ग वाइड कॉरिडोर एंड एट द एंड ऑफ इट आई केम टू द बॉल रूम. बॉल रूम बेसिकली एक डांसिंग रूम होता है. तो वहाँ पे उसने देखा कि एक डांसिंग रूम था. देयर वर डबल डोर्स लीडिंग इनटू इट. वहाँ पे एक ही रूम में इतना बड़ा रूम था कि उसके अंदर 2 डोर्स थे जो उसके अंदर खुलते थे. एंड इन फ्रंट ऑफ द डोर देयर वाज अ लार्ज नोटिस बोर्ड ऑन अ स्टैंड. द नोटिस इन द बोर्ड सेड, अच्छा उसके बाहर एक जो लार्ज नोटिस बोर्ड था उसको वो उस बोर्ड में ये था, द डबल टोज इनटू द, अच्छा ये रहा वो नोटिस जो उसके बाहर था. The double doors into the room were open. I peeped it. It was a closet room. अच्छा जो डबल रूम था वो डबल डोर्स थे वो खुले हुए थे और वो उसके अंदर वो चुपके से उसके अंदर चला गया. इट वॉज अ क्लोजेट रूम. वो काफ़ी बड़ा था, कोलोसल.
colossal room, ठीक है? It was a very big, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वो कमरा था. There were rows and rows of chairs all facing a platform. और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि as it was since it was a dancing room, ballroom, तो वो definitely बाहर एक stage सामने तक होगा और काफ़ी सारी rows of chairs, काफ़ी chairs की जो lines थी वो वहाँ पे लगी हुई थी. The chairs were painted gold and they had little red cushions on the seats, but there was not a soul inside. अच्छा, उसके बाद काफ़ी जो चेयर्स थी वो गोल्ड कलर की थी, उस पर रेड कलर के कुशन्स थे और वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था. I sidled into the room. मैं खामोशी से चुपके से उसके अंदर गया. The meeting of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children must have taken place earlier in the day. जब मीटिंग वहाँ पे होने वाली थी रॉयल सोसाइटी की, किस लिए होने वाली थी? जो क्रूअल्टी यानी कि जो जुल्म होता है बच्चों को, उसके खिलाफ वो कोई वहाँ पे अरेंजमेंट करने वाले थे, कोई आवाज़ उठाने वाले थे, तो वो उसने सोचा कि ये दिन के शुरू में हो गई होगी. And now they had all gone home. अब वो सब घर जा चुके हैं. Even if they had not, even if they did suddenly come pouring in, there wouldn't be wonderful kind people who would look with favor upon a young mouse trainer going about his business. Yes, yes. उसने ये कहा कि अगर वो लोग अगर आ भी गए बाय चांस तो वो बड़े अच्छे लोग होंगे, उनको ये पता होगा कि मैं एक यंग सा माउस ट्रेनर हूँ और वो ज़रूर मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, मुझे इनफैक्ट फेवर करेंगे. At the back of the room, there was a large folding screen with Chinese dragons painted on it. I decided to go behind the screen due to my training there. I wasn't a bit frightened of the prevention cruelty to children people, but there was always a chance that Mr. Stranger might pop his head around the door. अच्छा, उस रूम के पीछे क्या था? एक काफ़ी लार्जिंग फोल्ड स्क्रीन था जिसमें चाइनीज़ ड्रैगन्स थे बने हुए थे और उस पर पेंट हुए हुए थे एक्चुअली. सो उसने सोचा कि मैं उसके पीछे जाऊंगा और मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा. अच्छा, मैं जो हूँ वो डरा हुआ नहीं था, लेकिन जो बंदे वहाँ पे थे, जो क्रुएल्टी ऑफ चिल्ड्रन पीपल, उनकी वजह से मैं डरा हुआ तो नहीं था, लेकिन मुझे ये ऑलवेज चांस रहता था कि मिस्टर स्ट्रेंजर जो है वो वहाँ पे आ सकते हैं उस दरवाजे के पास जहाँ पे वो खड़े हुए थे. सो लेट्स एंड अप हियर. So hope you must have understood very well. Take care of the words which I have underlined. और make sure to go to the video, watch it again and again जब तक आपको उसको अच्छे से रीडिंग ना आ जाए, प्रोनाउंसिएशन ना आ जाए, ठीक है? इंशाल्लाह we're going to be in the next part. Till then, take care, Allah Hafiz.